بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ یکم محرم ایک ایسی شخصیت جن کا یوم شہادت ہے اور جو مراد رسول ہیں اور نبی جن کے داماد ہیں اور رسول جن کے داماد ہیں، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، اور جب مسلمان 39 تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر 38 لوگ، 39 لوگ وہ چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے اور کفار مکہ کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے، تان برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام بعو عمر ابن الحشام بعو عمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے یا عمر ابن حشام دے دے یا عمر ابن الخطاب دے دے۔ دعا کی اور قبول ہوئی، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر جب وہ داخل ہوئے تو تقویت کا یہ عالم ہوا کہ جب 40 مسلمان ہوئے تو عمر فاروق نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا انسان نے مر نہیں جانا، موت آنی ہے؟ کہا ہاں آنی ہے۔ تو کہا جب موت آنی ہے تو پھر چھپ کے نماز کیوں پڑھیں، کیوں نہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی اس تجویز کو نہ صرف ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، خوش ہو گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے، رسول خدا نے اور کعبہ میں پیدا ہونے والے شیر خدا نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ بہادری کے تحت کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی، اور پہلی اعلانیہ نماز جو ہی طواف ہوا اور پھر نماز ادا کی گئی، وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خسر رسول تھے، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کے جلال کا، جن کے خطاب کا، جن کی شاہ سواری کا، جن کے میدان جنگ میں تلوار چلانے کے ہنر کا زمانہ قائل تھا، اور جنہیں نہ صرف اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کے بعد بلکہ پہلے بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا تو عمر ابن الخطاب کو بلایا جاتا۔ وہ عمر جن کے دور خلافت کے اندر 22,51,030 مربع میل کا علاقہ اسلامی فتوحات کے بعد، اور جس میں عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، اناطولیہ، آرمینیا یہ سب شامل ہوئے، اور اسی لیے ایران سائڈ پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ تبرہ کا شکار بنایا جاتا ہے۔ اور یکم محرم کو یہ واضح کہوں، آپ بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، پھر وہی وہ ٹائٹل چل رہے ہیں، وہ ہیش ٹیگ چل رہے ہیں کہ تبرہ آن ہائی لیول، اسی لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری امت میں دین کے حوالے سے اگر سب سے زیادہ کوئی سخت شخص ہے تو وہ عمر فاروق ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، ان کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فاروق کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ابو بکر کو صدیق کا، عتیق کا، فاروق کو، عمر کو فاروق کا، اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، اور عشرہ مبشرہ میں شامل، اور وہ شخصیت جنہوں نے اپنی ذہانت سے، فطانت سے، جنہوں نے اپنے حلم سے، جنہوں نے ہر لیول پہ اللہ کے فرامین کے حوالے سے ڈٹ جانا مقدم سمجھا، اور جنہوں نے یہ جو آج مغرب کو جانتے ہیں نا، عمران خان صاحب بھی بہت، یہ نارتھ امریکہ میں، یورپ میں جو فلاحی ریاستیں ہیں، اس کا کانسیپٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فلاحی ریاست سے لیا گیا۔
जिनका अदल ऐसा था कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम कटहरे में खड़े होते थे और बराबर इंसाफ मिलता था, जिन्होंने अपने बेटे को दुर्रे मार दिए, और वो खलीफा शान शौकत वाला, वो खलीफा जिसका नाम सुन के और जो नहरे नील और दरियाए नील को खत लिखता था तो वो भी उसके हुक्म की बजावरी करता था, वो उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनको शहीद किया गया। फेरोज अबू लोलो ने, मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं, मजूसी ने, और उसी फेरोज अबू लोलो की मोहब्बत में आज कुछ लोग फेरोजा पहनते हैं, वो इस खुब से बातिन का मुजाहरा करते हैं। वो फारूक जिसने एलानिया तौर पे जब हिजरत में सब छुप के जा रहे थे, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान है, कहना है कि क्या कोई उमर के सिवा था जो एलानिया हिजरत कर रहा था? सब छुप के निकल रहे थे, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले अपने नेज़े तैयार किए, तलवार तैयार की, काबातुल्लाह में गए, तवाफ किया, और उसके बाद ऊंची आवाज में मुखातिब हुए, क्योंकि बहुत अच्छे खतीब भी थे। उन्होंने कहा, अगर कोई चाहता है कि अपनी बीवी को बेवा कर दे, अगर कोई चाहता है कि अपनी मां की कोख को खाली कर दे, अगर कोई चाहता है कि खुद यतीम हो जाए, तो वो मेरे सामने आ जाए और मेरी तलवार के सामने आ जाए। मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हुए मदीना जा रहा हूं, किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद जब बैत हुई जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, तो एक सहाबी ने कहा, उससे पहले खलीफा था, एक सहाबी ने कहा कि हम सब मोमिन हैं और उमर फारूक हमारे अमीर हैं। पहली दफा इस्लाम के अंदर अमीरुल मोमिनीन का टाइटल जो वो हजरत उमर फारूक को अता किया गया और उनको मिला। उसके बाद फिर अमीरुल मोमिनीन, और क्योंकि ये भी एक तकनीकी मसला आगे चल के कभी बयान करेंगे, और वो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी के, और उनकी ये दुआ थी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक, कि अल्लाह शहादत की मौत मेरा रिज़्क़ कर दे, मुझे शहादत की मौत देना और नबी के शहर मदीना में देना। और वो दुआ कबूल हुई, और आज वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदफून है, उनके पहलू में मदफून है। किस तरह उनको नबी से अलग किया जा सकता है? जितने मर्जी आलिम हों, फाजिल हों, जाकिर हों, उलमा हों, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनको जुदा नहीं कर सकते। लिहाजा इस अमर की ज़रूरत है। आज मैं कुछ अहादीस की किताबें पढ़ रहा था, इब्न माजा, तिरमिज़ी, उसमें मेरी सुन्नत और हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीके को इख्तियार करना, इब्न माजा की हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कहा, मेरे बाद अबू बकर और उमर, उनके अल्लाह के दीन के मामले में उनकी पैरवी करना। ये तिरमिज़ी की हदीस है, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उमर, शैतान तुमसे डरता है। यही वजह है कि उमर के बारे में गुफ्तगू करते हुए जब तबर्रा किया जाता है, वो डर और खौफ है, जो हैबत है, जो बैठ चुकी है, जो दूर तक फैल गई थी, दूर तलक। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और सच्ची बात यह है, मैं किसी भी ऐसी किसी चीज़ में नहीं जाना चाहता जो अमन को ख़राब करे या फ़िरका वारियत की जिससे हवा का तासुर मिले, लेकिन इन नफूस कुदसिया को, इन हस्तियों को मानना पड़ेगा। जो मुसलमान है उसको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। ये ईमान का तकाजा है और ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह कि और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, चौकीदारी का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, और बैतुल माल को कायम करना, और जो आ रहा है वो तकसीम करना, और इतनी फतूहात के बावजूद जुल्म ना करना, बरबरियत का मुजाहरा ना करना। और हो भी कैसे सकता था कि अगर नबी कोई और आना होता तो हज़रत उमर फारूक होते। अल्लाह ताला हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जो
8ਵੀं पुश्त पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से रिश्ता बनता है। और मरा और अदी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मरा की औलाद में से हैं। और 8वीं पुश्त पे जाके जब पता चलता है तो हज़रत उमर फारूक अदी की औलाद से हैं। रिश्तेदारी भी है, लड़ी भी एक है, निकाला भी नहीं जा सकता इनको बाहर। लिहाजा वो कोशिशें न की जाए, वो जसारत न की जाए जो मोमिनों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करें, खलफशार पैदा करें, मामलात को जो है वो ख़राब करें, उनसे बचना चाहिए। और वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिसने इतनी जुर्रत दी थी कि जिससे एक सहाबी उठ के पूछता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, जो माले गनीमत में कपड़ा मिला है, हमारा तो पूरा कुर्ता तैयार नहीं होता और आपका किस तरह तैयार हो गया। कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा बेटा जवाब देगा। हाय, बेटे ने क्या कहा कि मेरे बाबा के पास कपड़े एक ही कुर्ता है, एक ही कुर्ता है जिसको धोया जाता है, पहना जाता है। लिहाजा मुझे जो मिला कुर्ते का कपड़ा मैंने अपने बाबा को दिया तो इनका नया कुर्ता सिल सका है। इतना ज्यादा जमहूरियत, सवाल का मौका, और खुद अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन और सिपा सलार हो, हर मैदान में अब सबसे आगे बढ़ने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत तमाम गज़वात में तलवार चलाने वाला और शहादत की दुआ करने वाला। अल्लाह करे आज के हुक्मरानों को भी अदल फारूकी भी याद रहे। आज के जितने जिम्मेदारान रियासत हैं, सियासत हैं, सहाफ़त हैं, अल्लाह करे वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से सबक हासिल करें। और अल्लाह करे कि हम इस काबिल हो जाएं, हम तो उनके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हैं। अल्लाह करे कि रोज़े क़यामत उनकी ज़ियारत भी हो जाए, उनकी कुर्बत भी हासिल हो जाए और उनकी हमसायगी भी अगर मिल जाए तो इससे बढ़ के और क्या कहना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आइंदा चल के भी गुफ्तगू करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले तो अल्लाह अपने अहकामात पे अमल करने की तौफीक दे, नबी की सुन्नत पे चलने की तौफीक दे और खुलफाए राशिदीन और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तालीमात पे अमल पैरा होने की तौफीक दे और बाहम शीर व शकर रहे। और आखिर में ये भी कह दूं कि वो जो खुसरे रसूल था, सुसरे रसूल था, वो दामाद अली भी था। अहले सुन्नत की किताबों में है, अहले तशी की किताबों में है, लेकिन